Student, we teach chapter number 3 in geography, drainage. What is drainage? The meaning of drainage system: the river systems of the particular area. If we see the physical map, we find that small streams from different directions join the main river. This main river flows and falls into the water body like a lake, a sea or an oceans. बच्चों, आज मैं आपको अध्याय 3 भूगोल में पढ़ाऊंगी कि अपवाह तंत्र क्या है। अपवाह तंत्र सबसे आशय किसी क्षेत्र नदी तंत्र से है। यदि हम किसी प्राकृतिक मानचित्र को देखेंगे तो पाएंगे कि कई छोटी धाराएं विभिन्न दिशाओं से बहकर आती है और मिलकर एक मुख्य नदी का निर्माण करती है। ये बहकर जल के बड़े भाग जैसे झील, समुद्र अथवा महासागर में मिलती है। The amount of rainfall and topography form of drainage systems. The river and its tributaries drain the area and form the physical features of the region. This is known as the drainage system or the drainage area of the river. Rivers form various landforms or features by cutting, flowing and depositing. According to the topographical structures, river flow in the various drainage patterns. Observing the river map of India, we find that any highland like mountains separate two neighboring drainage basins. This highland is known as the water divide. When one river captures the water of the other river, it is called the river capturing. बच्चों, वर्षा की मात्रा तथा उच्च वज का स्वरूप अपवाह तंत्र की रचना करते हैं। नदी अपनी सहायक धाराओं के साथ जिस जल क्षेत्र को प्रवाहित करती है तथा उस प्रदेश को प्राकृतिक रचना करती है, उसे उस नदी का अपवाह तंत्र या अपवाह क्षेत्र कहते हैं। नदियाँ कटाव, बहाव और जमाव के द्वारा विभिन्न आकृतियों का निर्माण करती है। नदियाँ धरातल की संरचना के अनुसार विभिन्न प्रकार के अपवाह प्रतिरूपी में बहती है। भारत की नदियों के मानचित्र का अवलोकन करने पर पता चलता है कि कोई भी ऊंचा क्षेत्र जैसे पर्वत या उच्च भूमि दो पड़ोसी अपवाह द्रोणियों का एक दूसरे से अलग करते हैं। इस प्रकार की उच्च भूमि को जल विभाजक कहते हैं। जब एक नदी दूसरी नदी के जल क्षेत्र को अपने में मिला लेती है, उसे अपहरण कहते हैं। Now introducing the follow the water throughout the well-defined channels is known as the drainage, and the network of such canals is called the drainage system. The drainage pattern of an area is outcome of the geological time period, nature and the structures of the rocks, topography, slope, amount of water flowing and periodicity of the flow. Perennial, always with water. Ephemeral, water during rainy season and dry otherwise. The river drains the water collected from the specific area which is called the catchment area. An area drained by the river and its tributaries is called the drainage basin. The boundary line of separating one drainage basin from the other known as the watershed. The catchments of the large river are called river basin, while those of small rivulets and the reeds are often referred as the watershed. There is, however, a slight difference between the river basin and watershed. Watersheds are small in area while the basin cover large area. River basin and the watersheds are marked by unity what happened in one parts of the basin. बच्चों, अभी मैंने आपको इसके पहले डिटेल में दिया, पर हम कुछ पॉइंट्स पे परिचय देंगे कि अच्छी तरह से परिभाषित चैनलों के माध्यम से पानी के प्रवाह को ड्रेनेज के रूप में जाना जाता है
और ऐसे चैनलों के नेटवर्क को ड्रेनेज सिस्टम कहा जाता है। किसी क्षेत्र का जल निकासी पैटर्न भूवैज्ञानिक समय अवधि, चट्टानों की प्रकृति व संरचना, स्थलाकृति, ढलान, बहने वाले पानी की मात्रा को प्रवाह की आवधिकता का परिणाम है। बारहमासी हमेशा पानी बहने के साथ, अल्पकालीन बरसात के मौसम में पानी और सूखा अन्यथा। एक नदी एक विशेष क्षेत्र के एकत्रित जल को बहा देती है जिससे उसका जल ग्रहण क्षेत्र कहा जाता है। एक नदी और उसकी सहायक नदियों द्वारा बहाए गए क्षेत्र को जल निकासी या बेसिन कहा जाता है। एक जल निकासी बेसिन को दूसरे से अलग करने वाली सीमा रेखा को वाटरशेड के रूप में जाना जाता है। बड़ी नदियों के जल ग्रहण के क्षेत्र को, नालों के जल ग्रहण क्षेत्रों को अक्सर जलग्रहण क्षेत्र कहा जाता है। हालांकि नदी बेसिन और वाटरशेड के बीच थोड़ा अंतर है। वाटरशेड में छोटे होते हैं जबकि बेसिन में बड़े क्षेत्रों का कवर करते हैं। नदी घाटियों और वाटरशेडों को एकता के द्वारा चिह्नित किया जाता है। बेसिन या वाटरशेड के एक हिस्सों में जो होता है वह सीधे दूसरे हिस्सों और पूरे यूनिट को प्रभावित करता है, इसलिए इन्हें सबसे उपयुक्त सूक्ष्म, मध्य या स्थूल नियोजन क्षेत्रों के रूप में स्वीकार किया जाता है। Indian drainage systems may be divided on various bases. On the base of discharge of water, it may be grouped into the Arabian Sea drainage and the Bay of Bengal drainage. They are separate from each other throughout the Delhi-rites and the arrivals and the surrenders. Nearly 77% the Ganga, the Brahmaputra and the Mahanadi, the Krishna, etc. It's the organized toward the Bay of Bengal. 23% comparison the Indus, the Narbada, the Tapi, the Mahi and the Periyar systems discharge their water in the Arabian Sea. On the basis of the size of the watershed, the drainage basins of the India are grouped into the three categories. Major rivers basins with the more 20,000 square kilometer of catchment area. It includes 14 drainage basins such as the Ganga, the Brahmaputra, the Krishna, the Tapi, the Narbada, the Mahi and the Pennar, the Sabmati, the Brek, etc. Medium river basin is the catchment are between 2,000 to 20,000 square kilometer incorporating 44 rivers basins such as the Kalindi and the Periyar, the Meghna, etc. Minor river basins with the catchment area of the less than 2,000 square kilometer include fairly good number of rivers flowing in the area of the low rainfall. On the basis of the mode of the origins, nature and the characteristics, the Indian drainage may also be classified into the Himalayas drainage and the peninsular drainage. Although it has the problem of including the Chambal, the Betwa, the Son, etc., which are much older in age and the origin than other rivers that have their origin in the Himalayas. It is the more accepted basis of classifications. भारत जल निकास प्रणाली का विभिन्न आधार पर विभाजित किया जाता है। पानी के निर्वाह समुद्र की और उन्मुखीकरण के आधार पर इसे निम्नलिखित में वर्गीकृत किया जा सकता है। पहला अरब सागर जल निकासी और दूसरा है बंगाल खाड़ी जल निकासी। ये दिल्ली रीजनल और अरावली और सह्याद्री के माध्यम से एक दूसरे से अलग हो गए हैं। लगभग 77% गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, कृष्ण आदि बंगाल की खाड़ी की ओर से उन्मुख है। सिंधु, नर्मदा, तापी, माही और पेरियार नदी 23% अरब सागर में अपना जल बहाता है। वाटरशेड के आकार के आधार पर भारत के अपवाह घाटियों को 3 श्रेणियों में बांटा गया है। 20,000 वर्ग किलोमीटर से अधिक जल संग्रह क्षेत्र वाली प्रमुख नदी
घाटियाँ, इसमें 14 जल निकासी घाटियाँ शामिल हैं, जैसे गंगा, ब्रह्मपुत्र, कृष्णा, तापी, नर्मदा, माही, पेनार, साबरमती, बराक आदि। 2000 से लेकर 20,000 वर्ग किलोमीटर के बीच जल संग्रह क्षेत्र के साथ मध्य नदी घाटियाँ 44 नदी घाटियों जैसे कालिंदी, पेरियार, मेघना आदि को शामिल करती है। 2000 वर्ग किलोमीटर से कम के जल संग्रह क्षेत्र वाली छोटी नदी घाटियों में कम वर्षा वाले क्षेत्र में बहने वाली नदियों की काफ़ी अच्छी संख्या शामिल है। उत्पत्ति और प्राकृतिक विशेषताओं के आधार पर भारतीय जल निकासी को भी वर्गीकृत किया जा सकता है, जैसे हिमालय जल निकासी और प्रायद्वीप जल निकासी। यद्यपि इसमें चंबल, बेतवा, सोन आदि भी शामिल होने की समस्या है, जो हिमालय में अपनी उत्पत्ति वाली अन्य नदियों की तुलना में उम्र और उत्पत्ति में बहुत पुरानी है। यह वर्गीकृत का सबसे स्वीकृत आधार है। River which have their sources in the Himalayas and discharge their water either in the Bay of Bengal or in the Arabian Sea. Large rivers flowing on the peninsular plateau have their origin in the Western Ghat and they discharge their water in the Bay of Bengal. The Narmada and the Tapi are two large rivers which are exceptions. They along with many small rivers discharge their water in the Arabian Sea. Hence, this scheme has been followed in this book. नदियों के जिनके क्षेत्र हिमालय में है और अपना जल या तो बंगाल की खाड़ी में या अरब सागर में बहाती है। प्रायद्वीप पठार पर बहने वाली बड़ी नदियाँ पश्चिम घाट से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में अपना जल प्रवाहित करती है। नर्मदा और तापी दो बड़ी नदियाँ हैं जो अपवाद हैं। वे कई छोटी नदियों के साथ अरब सागर में अपना जल बहाते हैं, इसलिए इस पुस्तक में इस योजना का पालन किया गया है। द ड्रेनेज सिस्टम्स ऑफ हिमालय। अब हम ड्रेनेज सिस्टम्स ऑफ हिमालय। देयर इज द ड्रेनेज सिस्टम ऑफ हिमालयस। द ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया आर मेनली कंट्रोल्ड बाय द बोर्ड रिलीफ फीचर्स ऑफ द सबकॉन्टिनेंट. According to this, the India rivers are divided into two major groups, the Himalayan rivers and the Peninsular river. Apart from originating from the two major physiographic regions of India, the Himalayan and the Peninsular rivers are different from each other in many ways. Most of the Himalayan rivers are perennial. It means that they have water throughout the year. This river receive water from the rain as well as form of melted snow from the lofty mountain. The two major Himalaya rivers, the Indus and the Brahmaputra, originate from the north of mountain range. They have cut throughout the mountain, making gorges. The Himalayas drainage. It mainly includes the Ganga, the Indus and the Brahmaputra river basin. Since these are the feed both of the meltings of snow and perceptions of the river, this system are perennial. Three rivers pass throughout the Grand Gorges covered out by the erosional activity carried on the simultaneously with the uplift of the Himalayas. These rivers also form V-shaped valleys, rapids or the water flow in their mountain across. While entering the plants, they form depositions features like flat valley, oxbow lakes, flow plains, buried canals and the deltas near the river's mouth. River also known as the Snow of Bihar, has been notorious for frequently changing its course. The Kosi bring high quantity of sediments from form of the upper reaches and the deposit it is in the plains. The course gets blocked and consequently the river change its course. At element of the Himalayas drainage, there are the difference of the opinion about the
evolutions of the Himalayas rivers. Geology believe that the Malti river called the Shivalik and the Indo-Brahma travels at the entire Longitudinal extent of the Himalayas from Assam to Punjab and onward to Sindh and finally discharge into the Gulf of Sindh near lower Punjab during the Mykonos period of some 5 to 24 million years ago. The remarkable country of the Shivalik and its lectures organized of the lively deposit contents of the salt day boulders and the conglomerates support these viewpoints. It is appointed that the due course of time Indo-Brahma river was dismembered into the three main drainage systems. This one is a map. You see the nearest or neighboring countries and rivers to flow by Himalayas and the peninsula to flow to Bay of Bengal or Arabian Sea. भारत की जल निकासी प्रणाली हिमालय ड्रेनेज, इसमें मुख्य रूप से गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र नदी घाटियाँ शामिल हैं। चूँकि ये बर्फ़ से पिघलने और वर्षा दोनों से पोषित होती है, इस प्रणाली की नदियाँ बारहमासी होती हैं। ये नदियाँ हिमालय के उत्थान के साथ साथ की गई अप्रदन गतिविधियों द्वारा अकेरी गई विशाल घाटियों से होकर गुजरती है। ये नदियाँ अपने पहाड़ी मार्ग से वी आकार की घाटियों, रैपिड्स और झरने भी बनाती है। ये नदी अपने पहाड़ी मार्ग से होती हुई मैदानों में प्रवेश करते समय वे समतल घाटियों, बैल धनुष, झीलों, बाढ़ के मैदानों, लटके हुए चैनलों और नदी के मुहाने के पास डेल्टा जैसी निशेषण विशेषता बनाते हैं। कोशी नदी, जिसे बिहार का शौक भी कहा जाता है, बार बार अपना मार्ग बदलने के लिए कुख्यात रही है। कोशी अपनी ऊपरी पहुंचने से भारी मात्रा में तलछट लाता है और इसे मैदानी इलाकों में जमा करता है। पाठ्यक्रम अवरुद्ध हो जाता है और परिणाम स्वरूप नदी अपना मार्ग बदल देती है। हिमालय जल की निकासी का विकास हिमालयी नदियों के विकास के बारे में मतभेद है। भूवैज्ञानिकों का मानना है कि शिवालिक या तो इंडो ब्रह्मा नामक इस शक्तिशाली नदी है, असम से पंजाब और उसके बाद सिंध तक हिमालय की पूर्वी अनुद्रेद्य सीमा को पार किया है और अंत में मियोसीन अवधि के दौरान लगभग 5 से लेकर 24 मिलियन वर्षों के दौरान निचले पंजाब के पास सिंध की खाड़ी में छुट्टी दे दी गई। पहले शिवालिक के उल्लेखनीय निरंतरता और उसकी झील को उत्पत्ति और जलूद जैसे निष्पेद, जिसमें रेत, गाद, मिट्टी, शिला खंड और समूह शामिल हैं, इस दृष्टिकोण का समर्थन करते हैं। यह माना जाता है कि समय के साथ साथ भारत ब्रह्मपुत्र नदी 3 मुख्य जल निकासी प्रणालियों में विभाजित हो गई थी। द इंड्यूज इट्स द ट्राइब्यूट्स इन द वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया। The systems of comparison of Indus, its the tributes, the length of the Indus river is about 29 km. Its river is tribute near the Mansarovar and flow toward the west, forming a beautiful 500 meters deep gorge in the Ladakh district, Jammu and Kashmir. From here, it flowed toward the southwest, the entire Pakistan, and finally fall into the Arabian Sea. The 5 tributes of the Indus are the Jhelum, Chenab, the Ravi, the Beas and the Satluj. बच्चों, सिंधु नदी तंत्र, जिसे इंडस नदी से भी जाना जाता है, इस तंत्र में सिंधु और उसकी सहायक नदियों में सम्मिलित किया जाता है। सिंधु नदी की कुल लंबाई लगभग 2900 किलोमीटर है। सिंधु नदी तिब्बत के मानसरोवर के पास से निकलकर पश्चिम की ओर बहती हुई जम्मू और कश्मीर से लद्दाख जिले में
500 मीटर के ऊंचा एक सुंदर दर्शनीय गार्ज बनाती हुई बहती है। यहाँ से ये दक्षिण पश्चिम से बहती हुई पाकिस्तान में प्रवेश कर अंत में अरब सागर में मिल जाती है। सिंधु की 5 सहायक नदियाँ झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलुज 5 नदियाँ इस प्रदेश को पंजाब कहते हैं। जल प्रवाह की मात्रा वर्ष भर एक समान ही रहती है। इसके जल का उपयोग हम पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और दक्षिण पश्चिम भागों की सिंचाई के लिए भी करते हैं। द इंडस एंड इट्स 5 ट्राइब्यूट्स इन द वेस्टर्न पार्ट, द गंगा एंड इट्स हिमालय ट्राइब्यूट्स इन द सेंट्रल पार्ट एंड द स्ट्रेचेस ऑफ द ब्रह्मपुत्र इन आसाम एंड इट्स हिमालय ट्राइब्यूट्स इन द ईस्टर्न पार्ट। पश्चिम भाग में सिंधु और उसकी 5 सहायक नदियों के बारे में हमने डिटेल में देख लिया। मध्य भाग में गंगा और उसकी हिमालय की सहायक नदियाँ तथा असम में ब्रह्मपुत्र फैलाव का पूर्वी भाग में इसकी हिमालय सहायक नदियाँ हैं। विघटन संभव पश्चिम हिमालय में पैलेस्टीन उथल पुथल के कारण हुआ था, जिसमें पोटवार पठार दिल्ली रेंज का उत्थान भी शामिल था, जिसमें सिंधु और गंगा जल निकासी प्राणियों के बीच जल विभाजन के रूप में काम किया था। इसी तरह मध्य प्लीस्टोस्टीन काल के दौरान राजमहल पहाड़ियों और मेघालय पठार के बीच मालदा गैप क्षेत्र को डाउन थ्रिस्टिक ने गंगा और ब्रह्मपुत्र प्रणालियों को बंगाल की खाड़ी की ओर बहने के लिए मोड़ दिया है। द गंगा सिस्टम, द सिस्टम ऑफ गंगा। गंगा river, the basin of the Ganga is most important river of India, both from review of basins and culture signification. The length of the river Ganga is more than 2500 kilometer. Its sources is near the Gangotri. The Ganga entire the plains near the Haridwar. It means the tributes are the Yamuna, the Ganghara, the Gangadak and the Kosi. This river form the fertile float plant. They form meanders and the oxbow lakes near the Ambala. A water divided separate the Ganga and the Indus drainage system. The Ganga receives some of its tributes like the Chambal and Ken, the Betwa and the Son and the Damodar form of peninsular plateau. Big dams have been built on this river which are used for hydroelectricity of irrigations, flowing southward of form delta and finally falls into the Bay of Bengal. The main stream of Ganga entire Bangladesh, and when it joined the Brahmaputra river it is called the Meghna. बच्चों, गंगा नदी का तंत्र हमने जिस प्रकार देखा, गंगा नदी की लंबाई 2500 किलोमीटर से अधिक है। यह गंगोत्री हिमानी से निकली है। हरिद्वार के पास गंगा पर्वतीय भाग से छोड़कर मैदानी भाग में प्रवेश करती है। इसकी सहायक नदियाँ यमुना, घाघरा, गंडक और कोसी प्रमुख हैं। ये नदियाँ उपजाऊ बाढ़ का मैदान बनाती है। इनमें नदी मोड़कर गोखरू झीलें पाई जाती है। अम्बाला के निकट जल के विभाजन द्वारा गंगा एवं सिंधु नदी के प्रवाह क्षेत्र का विभाजन होता है। प्रायद्वीप भारत का कठोर भूमि से बहकर आने वाली चंबल, केन, बेतवा, सोन, दामोदर नदियों में भी गंगा प्रणाली का अंग है। इन पर बड़े बड़े बांध बनाए गए हैं जिनसे जल विद्युत और सिंचाई की जाती है। दक्षिण की ओर बहती हुई गंगा डेल्टा बनाते हुए बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। गंगा की मुख्य धारा बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है और ब्रह्मपुत्र नदी से मिलने से इसे हम मेघना भी कहते हैं। द गंगा इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिवर ऑफ इंडिया, बोथ आर फॉर्म ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू एट दिस बेसिन और कल्चरल सिग्निफिकेशन. It rises in the Gangotri that we already studied. This one is a गंगा प्रणाली. गंगा अपने बेसिन और संस्कृति महत्व दोनों ही दृष्टि से भारत की सबसे महत्वपूर्ण नदी है. ये उत्तराखंड की उत्तरकाशी जिले से गोमुख के पास से गंगोत्री ग्लेशियर से उगता है. यह मध्य और लघु हिमालय से सक्रिय घाटियों से कटती है. देवप्रयाग में भागीरथी अलकनंदा से मिलती है और उसके बाद इसे गंगा के रूप में जाना जाता है. अलकनंदा का स्रोत बद्रीनाथ के ऊपर
सतोपथ ग्लेशियर्स में है। अलकनंदा में धौली और विष्णु गंगा शामिल है, जो जोशीमठ या विष्णु प्रयाग में मिलती है। अलकनंदा की अन्य सहायक नदियाँ जैसे पीले, कर्ण, प्रयाग में इसे मिलती है, जबकि मंदाकिनी या काली गंगा रुद्रप्रयाग में मिलती है। गंगा मैदानी इलाकों से हरिद्वार में प्रवेश करती है और भागीरथी और पद्मा नामक दो वितरिकाओं में विभाजित नदी की लंबाई 2525 किलोमीटर है। ये उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम जाता है। गंगा बेसिन अकेले भारत में लगभग 8.6 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैली हुई है। गंगा नदी प्रणाली भारत में सबसे बड़ी है, जिसमें कोई बारहमासी या कोई गैर बारहमासी नदियाँ हैं, जो क्रमशः उत्तर में हिमालय और दक्षिण में प्रायद्वीप से निकलती है। सोन इसकी प्रमुख दाहिने किनारे की सहायक नदी। बाएं किनारे में महत्वपूर्ण सहायक नदियाँ रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोशी और महानदी। नदी अतः सागर द्वीप के पास बंगाल की खाड़ी में मिले। बच्चों, आज यहाँ पर मैं समाप्त करती हूँ। आगे का पार्ट मैं आपको दूसरे वीडियो में समझाऊंगी।